Hello everyone, welcome to HDM IAS. Welcome to this 10-minute series of revision. In the previous class, we have discussed about the basics of economics, and in this today class we are going to discuss about the microeconomics. So now guys, I am going to show you a beautiful chart which is going to help you to revise and give you a bird eye view of the microeconomics. So let me just take you there. Just look at this beautiful graph. Now you will find some of the topics such as demand and supply, that is law of demand and law of supply, along with the opportunity cost being repeated in this particular discussion because they are very much related to the microeconomics and it is very important. And on the other hand, the topics which we are going to discuss, the different topics, they are very much correlated to the demand and supply only. So let's just quickly revise them up. In this, we have discussed about the law of demand, where we have seen that the demand is inversely proportional to the prices. That means when the prices are going to increase, the demand is going to decrease. Just look at this particular chart, where here we have the quantity demanded and here we have the prices. On the other hand, if you look towards the supply, you will find that supply is directly proportional to the prices. When the prices are going to increase, the supply is also going to increase. It is very simple. We have discussed already, because whenever the prices are increasing, it provides incentives to the supplier. तो वो और ज़्यादा supply करने की कोशिश करेगा. Now, the second topic which we are going to discuss is about the elasticity. अब इसको पहले एक example से समझते हैं. देखिए, अगर कोई भी आयरन रॉड है, सपोज कीजिए आपके हाथ में अगर आप आयरन रॉड लेंगे और उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, उसको खींचने की कोशिश करेंगे, द स्ट्रेच वुड बी मिनिमल और आई वुड से जीरो. राइट, स्ट्रेच वुड बी जीरो, क्योंकि आप कितना भी फोर्स लगा लीजिए वो क्या है, एक तरीके से इनइलास्टिक है. ऑन द अदर हैंड, इफ यू लुक टुवर्ड्स दिस रबर बैंड, इफ यू जस्ट apply a little force on it, you will see that it's going to stretch much, because here it is very much elastic in nature. Clear? Now on the same way, if you look towards this particular concept, that is price elasticity, that simply shows कि अगर हम लोग प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो उस पर डिमांड कितनी ज़्यादा इंक्रीज और डिक्रीज होगी. अब देखिए, कुछ गुड ऐसे होते हैं जिसमें डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है सिर्फ थोड़ी सी प्राइस चेंज करने से, और कुछ गुड ऐसे होते हैं जिस पे प्राइस का ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैम वन बाय वन. सो सपोज इट इज़ बेसिकली द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ प्राइस टू प्राइस चेंज. सो फर्स्ट वी हैव द इनइलास्टिक गुड्स. इनइलास्टिक, जैसे कि मैंने आपको बताया, मीन्स प्राइस का उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. एंड द एग्जाम्पल हियर इज असेंशियल, लाइक सॉल्ट्स, असेंशियल गुड्स जिसको हम बोलते हैं. अब देखिए, सॉल्ट का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता, तो अगर उसकी प्राइस इंक्रीज भी होगी, स्टिल द डिमांड इज गोइंग टू रिमेन सेम. क्लियर? Now, on the other hand, we have elastic goods. Now, the elastic good are basically one where with a small change in the price, the demand is going to shoot up. ठीक है, डिमांड एकदम से या तो बढ़ जाएगी या एकदम से घट जाएगी. ठीक है, प्राइस का उस पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है. तो हेयर सपोज इफ द प्राइस इज गोइंग टू इंक्रीज, देयर इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द डिमांड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन देखेंगे, अगर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा एकदम से इंक्रीज हो जाए तो आप उस मोबाइल फ़ोन को नहीं लेंगे, क्योंकि उसके सब्सिट्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं. क्लियर? तो आप सोचेंगे कि अगर वाई टू परचेज लेट्स से 40,000 रुपीज़ मोबाइल फ़ोन रादर देन वी कैन गो फॉर 20,000 रुपीज़ मोबाइल फ़ोन विद द सेम फंक्शनैलिटी. क्लियर? ऑन द अदर हैंड, वी हैव दिस क्रॉस इलास्टिसिटी. अब उससे पहले, आप क्रॉस इलास्टिसिटी को समझने से पहले आप पहले दो तरीके के गुड्स को समझिए. फर्स्ट वन वी हैव इज द सब्स्टिट्यूट गुड, अनदर वन वी हैव इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड. देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड इज वन वेयर which provides substitutability to another good. फॉर एग्जाम्पल, टी एंड कॉफ़ी, जिसको हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं. कभी भी आप टी और कॉफ़ी को एक साथ कंज्यूम नहीं करेंगे, या तो आप टी को कंज्यूम करेंगे या कॉफ़ी को कंज्यूम करेंगे. Now, suppose if the prices of the coffee is increasing too much, in such particular case, the demand for tea is going to increase. Clear? Now, this is one of the example of the substitute goods. Clear? चलिए दूसरा देखते हैं. Next we have is the complementary good. So complementary good ऐसे गुड होते हैं जो दोनों एक साथ यूज होते हैं, जैसे कि टी एंड शुगर. टी एंड शुगर, ऑल्सो कार एंड पेट्रोल. तो आप सपोज कीजिए, अगर पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो कार का डिमांड क्या होगा, डाउन हो जाएगा. सो क्रॉस इलास्टिसिटी बेसिकली ये बोलता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर गुड का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उस पर दूसरे गुड पे क्या असर पड़ेगा. तो जैसे कि आप सब्स्टिट्यूट गुड पे देखेंगे, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे डिमांड दूसरे गुड की
बहुत जल्दी इंक्रीज या डिक्रीज होगी. सो हेयर इट्स वैल्यू इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन जीरो, right? So for the substitute goods, the cross elasticity value would be greater than zero. That means it would be positive value. On the other hand, if you look towards the complementary good, its value going to be negative. The reason is very much simple, क्योंकि जब भी प्राइस इंक्रीज होगा अगले की भी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, मतलब रिवर्स कोरिलेशन है. क्लियर? चलिए तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज यूटिलिटी एंड कंज्यूमर बिहेवियर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी. देखिए यूटिलिटी क्या होता है? द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजम्पशन और कंज्यूमिंग समथिंग. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. Let's say you participated in the marathon where you have run for let's say 12 kilometers. 12 kilometers. Up after running for 12 kilometers, you might be requiring some hydrating agents, for example, water. Now, when you are going to take the first glass of water, in that particular case, your utility would be very high. आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होगी और आप पहला ग्लास बहुत ही आसानी से और मच सेटिस्फेक्शन के साथ उसको पिएंगे. बट सपोज कीजिए आपने दूसरा पिया, तीसरा पिया, देन यू हैव द थर्ड ग्लास ऑफ और लेट्स से फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर. इन दैट पर्टिकुलर केस द यूटिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी फ्लूइड जा चुका है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो जैसे जैसे आप देखेंगे एडिशनल सेटिस्फेक्शन के साथ आपकी जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती चली जाती है. दिस इज व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. क्लियर? चलिए फोर्थ वी हैव इज द market structure. So see, first market structure we have is the perfect competition. Perfect competition बहुत सिंपल सा है. बहुत सारे बायर हैं, सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, यानी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, और यहाँ पे आप जो यानी कि कंज्यूमर है वो प्राइस को डिसाइड करेगा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गो इनटू वेजिटेबल मार्केट और सब्जी मंडी, इन दैट पर्टिकुलर मंडी यू विल सी दैट देयर आर सो मैनी वेंडर्स, राइट, दोज हु आर सेलिंग द सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट. सब वेजिटेबल सेल कर रहे हैं या फ्रूट सेल कर रहे हैं. Now, suppose if a particular vendor is asking for a higher price, you will move on to next vendor and ask for a lower price. Clear? So this is what we call perfect competition. Next we have is the monopoly. मोनोपोली में आप देखेंगे एक बहुत ही मतलब रेयर केस ऐसा होता है जहाँ पे आपके पास सिर्फ सिंगल फर्म होती है, हाई बैरियर्स होते हैं, वहाँ पे कोई भी इजीली एंटर नहीं हो पाता, और दे आर प्राइस मेकर, यानी कि जो कंपनी होती है वही प्राइसेस को सेट करती है. फॉर एग्जांपल रेलवे इंडिया. अब इंडिया में सिर्फ इंडियन रेलवे यानी कि गवर्नमेंट की एंटिटी है और उसमें प्राइवेट एंटिटीज़ को ऑपरेट करना अलाउड नहीं है. सो दे वेरी मच हैव द मोनोपोली इन दैट. नेक्स्ट वी हैव इज द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. देखिए मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में क्या होता है, मैनी सेलर्स हैं, राइट, बट दे आर प्रोवाइडिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल सोप, टूथपेस्ट, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल. अब देखिए कई सारी कंपनीज है जो सोप क्रिएट करती हैं या लेट्स से टूथपेस्ट क्रिएट करती हैं, बट दे हैव देयर डिफरेंट आई वुड से फीचर्स, राइट, डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट स्मेल, एवरीथिंग. सो हर कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रोडक्ट को परचेज या सेल मतलब बेसिकली परचेज करना चाहता है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. नेक्स्ट वी हैव इज द ओलिगोपोली. देखिए यहाँ पे सिर्फ फ्यू फर्म्स होती हैं, और इसका एक और जो आई वुड से देयर इज अ ऑफशूट व्हिच इज कॉल्ड डुओपोली. डुओपोली जहाँ पे सिर्फ दो ही फर्म्स ऑपरेट करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ फ्यू ईयर्स एगो वी हैव ओनली 2 कैब कंपनीज, दैट इज ओला एंड उबर. तो अगर आपके पास आपको कैब बुक करना है, आइदर यू विल गो टू ओला और आइदर यू विल गो टू उबर. नाउ एज इन दी ओलिगोपोली देयर आर फ्यू फर्म्स, सो दे आर interdependent on each other, right? Interdependent there would be. So we have one example, that is telecom sector. So we have only 3 companies which is operating right now, that is Jio, Airtel, Vi. हम BSNL को इसमें नहीं लेंगे because very much you know that 4G 5G जो अभी telecom companies provide कर रही हैं, सिर्फ यही 3 companies हैं हमारे पास. Clear? So there are very few companies which is operating in this particular sector, which is what we called oligopoly. Clear है? चलिए next we have production cost. See, in the last class, I have discussed about the economics, and I have told you that economics is the study of making decision in the scarcity of resources. So there we have discussed about the resources. अब देखिए किसी भी गुड को बनाने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, और वो रिसोर्सेज क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्लियर? सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. और देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है कि एक तो फर्स्ट व्हाट यू आर पेइंग टू दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट वी हैव डिस्कस, दैट इज फैक्टर ऑफ इनकम. ठीक है, फैक्टर ऑफ इनकम का आप पेमेंट करेंगे इन सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बोरो करने के लिए. ऑन द अदर हैंड
The idea here is that we need to minimize this production cost. किसी भी इकोनॉमी में कोई भी अगर प्राइवेट फर्म ऑपरेट कर रही है, देयर मेन एजेंडा इज टू डिक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट. नाउ अंडरस्टैंड, टू डिक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट, the main reason, or I would say the main idea is to increase more and more production. तो आप जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही कम आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी. तभी आपने देखा होगा कि अगर आप रिटेलर शॉप पे जाते हैं, दे आर गोइंग टू चार्ज यू हायर प्राइस. ऑन द अदर हैंड व्हेन यू गो टू होलसेल प्राइस, दे आर गोइंग होलसेल शॉप, दे आर गोइंग टू चार्ज यू लेस प्राइस, बिकॉज आप वहाँ पे बल्क में परचेज करते हैं. Now understand, from here we are going to discuss about the new topic, that is economies of scale. देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी कई सारी कॉस्ट बहुत कम हो जाती हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी, राइट, सो दे आर प्रोड्यूसिंग, दे आर हैविंग द बल्क प्रोडक्शन एंड चीपर पर यूनिट, एंड दे आर चीपर पर यूनिट. सो जैसे कि आप देखेंगे कि मारुति सुजुकी की जितनी भी गाड़ियां हैं वो अपने पीयर्स के कंपटीशन में काफ़ी कम प्राइजेस हैं उनका. Clear? So that is the reason behind it, because they are producing for masses, like they are producing in mass, right? वो बहुत ज़्यादा produce कर रहे हैं. So that is the reason behind the economies of scale, why everyone wanted to achieve that. Clear है? चलिए. Next we have is the another some goods which are going to provide you, let's say, violation to law of demand. देखिए, ऐसे कई सारे गुड हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं. हमने यहाँ पे पढ़ा था ऑलरेडी दैट डिमांड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइसेस. जब भी प्राइसेस इंक्रीज होंगी डिमांड डिक्रीज होगी. बट ऐसे कई सारे गुड्स हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं. नाउ दे आर ग्रिफिन गुड विच इज़ अ काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड ओनली. नाउ इनमें क्या होता है कि डिमांड राइज होती है एज द प्राइस इंक्रीजेज. फॉर एग्जाम्पल सम इन्फीरियर गुड जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया. अब देखिए, थोड़ा बहुत अगर इसमें प्राइस इंक्रीज होगा ना तो लोगों को लगेगा कि यार हो सकता है मार्केट में शॉर्टेज हो, सो लेट्स परचेज मोर एंड मोर. क्लियर? सो दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट दे शो दिस काइंड ऑफ गुड शोज एनॉमलीज टू द लॉ ऑफ डिमांड. क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेपल फूड फॉर पुअर, ब्रेड प्राइजेस. तो अगर कोई भी अगर इसका प्राइस इंक्रीज होगा, लोग और भी ज़्यादा उसको परचेज करने की कोशिश करेंगे. ऑन द अदर हैंड वी हैव वेबलिन गुड. वेबलिन गुड क्या होता है? लग्जरी गुड होता है. देखिए, लग्जरी गुड में क्या होता है, जैसे जैसे उसका प्राइस इंक्रीज होता है लोगों के लिए वो स्टेटस अपील होता है, एक स्टेटस सिंबल होता है. तो आप उतने ही ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हो, जस्ट टू शो दैट योर स्टेटस इज वे अबव देन दी अदर्स. फॉर एग्जाम्पल आईफोन. जब भी नया कोई आईफोन लॉन्च होता है, आपने देखा होगा उसका प्राइस कितना हाई होता है, 1.5 लाख रुपीज़, राइट. सो इवन इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन पीपल यूज टू चूज और दे यूज टू बाय द आईफोन. द रीज़न बिहाइंड इज द स्टेटस सिंबल, बिकॉज उनको लगता है कि अगर मेरे हाथ में आईफोन है तो लोग मुझे ज़्यादा लाइक रिस्पेक्ट देंगे. Clear? So that is the reason behind this. So, or some of the another example is diamond, gold, or gold jewelries, even luxury cars. So even in that particular case, they show anomaly because when the price is going to increase, the demand is going to increase. Clear? So again, they show anomalies to the law of demand. Clear, guys? So this way we have covered this basics of microeconomics, guys. Just stay tuned. In the next session, we are going to discuss about the national income accounting. So just stay tuned with us. Thank you.